A very good morning to everyone and welcome to the Dhan session today. So today we're in the fourth session of the topic that we started, which is creating a soul-to-soul connection. And today we have Sangeeta Didi to take the session. Didi, welcome. Om Shanti and over to you. Om Shanti, good morning, all of you. And a little bit warm winter morning also. So all are awake and all are angels. Yes, yeah. So who will prove that I am an angel? बिना कहे समझना इसी उसको कहेंगे एंजल्स है। बहुत बहुत सारे एंजल्स है। बिना कहे समझना, तो जब यहाँ बिना कहे समझेंगे ना, सब जगह बिना कहे समझेंगे। ऐसे लोगों की प्रमोशन बहुत जल्दी होती है क्योंकि इतने होशियार है, बिना कहे समझ जाते। किसको प्रमोशन चाहिए? यस, सो थैंक यू वेरी मच to understand the language of angels. Okay, so who had done the homework? There were some success stories to be told, right, this time? Yeah, and success stories, of course, that would be the main thing. But even if success stories वैसे दिखाई नहीं दे, but I did it, my doing is in itself is a success. So I'm sure you know what was the homework all about. Yeah, किसको पता है क्या homework था? What was the? You can speak out. Who know what was the homework? The homework was about soul to soul communication, right? Yeah, to just talk to the soul. सारा समय बातें करते रहते इधर. If we have sometimes complained, मन बहुत भटकता है, ये conversation की habit है. So as it is, it's a very natural habit to talk. It's nothing special. But to talk to the soul, not to the status, role, position. This was the homework. अच्छा, किसने किया? कितनों ने किया? You did it, wonderful. Okay. So you would like, and were you successful also? अच्छा, you did it. Anil. So I tried, Yeah. but obviously the response was not what I was expecting. Yeah, what it should have been, but still I tried. But I think there is a lot of scope of improvement in the way I tried to speak to this person. But yes, I mean, it is a good practice. Yeah. And also, I mean, I think it is very important to do it. जब आप अपने आप को थोड़ा पीछे रख के सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप उस फिलॉसफी को समझते हो, आई थिंक दैट इज वेरी ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ. Exactly. So one is he changed what you expected because of this practice. That is, you might say it's a success. लेकिन दूसरा है जब आप करते हुए कैसे महसूस कर करेक्ट, यस. करते हुए कैसे महसूस कर रहे थे? अच्छा लग रहा था, बट देन जब मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा इरिटेटिंग था. बट हाँ. व्हेन आई सैट बैक एंड आई थॉट अबाउट इट कि कैसे इसको बदला जा सकता है, क्या और किया जा सकता है, देन आई थिंक, एज आई सेड, इट इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस इन इटसेल्फ. Wonderful. This is what it happens. Even if you go on doing it yourself, वो नहीं चेंज हो रहा है, वो स्टिल नहीं बात कर रहा है, you just communicate with the soul, you become very clean. आपका मन साफ होता है, आपका घर साफ है, that is your success. दूसरे का घर साफ नहीं है, that is not our success. दिवाली में किसके घर साफ करते हैं? किसको दिवाली कहते हैं? अपने घर की सफाई. So we should celebrate this. I'm able to, and then you will see, you just go on doing it unconditionally, and you will certainly feel the result. This is what we have to do.
किसी से भी अनबन हुई, किसी को आपको सॉरी कहना है, किसी से आपको पता है कि उसने मिसअंडरस्टैंड किया है, बट आई जस्ट टॉक टू द सोल. I'll, and in that communication, I will convey whatever I have to convey, to the extent not only what I was wrong for, but even what she was doing, which is wrong, still I'll convey my forgiveness. एक बहन, the brother, I mean the husband had started with had fallen into another relationship. And this sister was a regular BK. And of course, starting में जैसे होता है, when one comes to know about it, the response and then the attitude towards the person in the family. So obviously everyone was with the wife कि this is wrong, etc., etc. उसने कहा, first for little, for some time she felt about it. This is so disheartening. It's a deception. उसके बाद उसने सोचा नहीं, इसका मैंने कभी किसी जन्म में इसके साथ किया था, मुझे इसको फॉरगिव करना, मांगना है. आई एम वेरी सॉरी टू दैट सोल जिसके साथ का रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि मैंने कभी आपको दुख दिया था. therefore you have come into our beautiful relationship and आपने हमें, और ये हो रहा है, तो it's somewhere my fault. She went on talking to that soul in that manner and without doing anything much of that explanation, or वो जो घर में पूरा एक महाभारत होता है, nothing of that. Within 6 months it resolved. Talk to the soul. Whom are you talking? Because that soul has come into your issues, into your this setup because of some past karmic account. और उससे बात करो, उससे बात करो. बस उसको वो केवल दिल से वो फील करवाना है कि तुम गलत हो. And then we feel it and say somewhere I was wrong in many, maybe some of the other episodes of my whole lifetime, जिसके कारण आप ऐसे कर. Finish. The best way and the most easiest way to solve the relationship. नहीं तो बहुत सारे दूसरे मेथड्स तो है. कोर्ट में जाओ, फिर ये करो, डिवोर्स दे दो, एलिमोनी डिमांड करो. Is it not a difficult practice? Is it not a difficult? Is it a confirmed success story after that? कोर्ट में जाएंगे, मेरे को सक्सेसफुल, मैं सक्सेस हो जाऊंगी. अगर मैं जीत भी गई, केस जीत गई, संबंध तो नहीं जीता ना. मुझे लाइफ में सुकून मिलेगा संबंधों को जीतने से, केस जीतने से नहीं मिलता. वो तो ईगो जीतता है, संबंध नहीं जीतते. सो प्लेसिंग द रिलेशनशिप at the prime is called soul to soul connection. So when it is soul to when it is with the human being, or when it is with the education, status to status, role to role, when I have that connection status के according, then it is called status का connection. So status का status के साथ means because he is so much, I like it. I'll obey the orders because he's the general manager. But if he's not, I won't obey. मुझे क्या पड़ी है? Any one of us would like in our future, once I was the general manager, the ED, or maybe even the MD of the company, and today I'm not, and therefore though no one is responding to me. Do we ever like when it comes to us? What do we say for this kind of setup in our company? कि मनुष्य बिल्कुल बिजनेस माइंडेड हो गए. हम यही कहते हैं, कोई दिल नहीं है. So when it is status to status, so I was talking to somebody in the Indian Oil, they used to keep a lot of programs. वो अभी रिटायर हो गया. मैंने कहा क्या हुआ, प्रोग्राम्स कम क्यों हुआ, या अभी
बोला दीदी अभी तो हम जाते भी है ना, तो लोग ऐसे हमारे जूनियर्स बिहेव करते, ऐसे भी उनको पता ही नहीं। और उस समय क्लिक ऑफ द माउस सबको हाजिर होना होता है। तो क्या था, वुड वी एवर लाइक ourselves to be in that position? हम क्या कहेंगे इसको, मतलब के साथी। एंड दिस इज वेयर द लॉस इज अनसक्सेसफुल, क्योंकि हमने हर जगह बिजनेस कर दी। When it comes to human beings, if I'm in interaction with the human beings, can I have that soul to soul communication? तो अगर स्टेटस का स्टेटस के साथ कम्युनिकेशन कनेक्शन है, एजुकेशन का एजुकेशन के साथ कनेक्शन है, तो इट इज अ हार्ट हेड टू हेड कनेक्शन। और जब व्हेन इट इज कमिंग फीलिंग्स का, फीलिंग्स ऑफ द सेल्फ connected with feelings of others, I connect to the feelings of others. This is heart to heart connection. So head to head connection, yes, we know very well. Where are we more comfortable? Head to head, heart to heart. अगर हमको ऑफिस में ऐसा कनेक्शन मिल जाए, हमारा ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। Would we like to come to office, or we have to come to office? So today what is happening, why it's like that? We had to come. सुनना पड़ता है, आना पड़ता है, करना पड़ता है। बट व्हेन इट इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? सिंपल है, 3 बातें। सोल टू सोल, सो एनी इफ आई कनेक्ट विद द फीलिंग्स ऑफ द सेल्फ विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, उसको क्या फील हो रहा है? उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है, हमें वो महसूस हो रहा है, आई कुड अंडरस्टैंड, एंड आई हैव द power or energy to talk to him accordingly, is called heart to heart connection. और फिर उसके लिए मुझे अगर कुछ त्याग भी करना पड़े, that is called soul to soul connection. So जहां soul to soul connection है, वहां क्या होगा? 3 बातें हैं। फर्स्ट इज कनेक्टिंग विद कंपैशन, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अगर वो क्रोध भी आ रहा है उसको, तो जरूर बेचारा कुछ इंजरी है उसके मन में, इसलिए क्रोध आ रहा है। दूसरा, कनेक्टिंग विद केयरिंग, एक अंदर की केयरिंग है, तो दैट केयरिंग, अब चाहे वो मेरा परव्यू में आता है या नहीं आता है, मुझे हो सकता है ज्यादा टाइम देना भी पड़े, बट आई एम स्टिल एबल टू केयर फॉर दैट पर्सन। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मे बी वो केयरिंग, I am the person I'm caring with is hardly connected with my success. कोई उसको उसको मुझे केयर करने से मेरी पोजीशन बढ़ेगी भी नहीं, मेरी कोई प्रमोशन भी नहीं होगी, but still I can care for that person. Is called soul to soul connection, and that will give you that satisfaction and that greatness which even a position cannot. Let's see this. A beautiful video. I'm sure many of us must have seen it, of Dr. Ratan Tata. On February 6, 2018, Prince Charles wanted to give Ratan Tata the Lifetime Achievement Award for Philanthropy at Buckingham Palace. Yes. Everything was set. It was under the auspices of the British Asian Trust. I reached London on the 2nd or the 3rd of February, and there were 11 missed calls from Mr. Tata. Yeah. So I said, God, what's happened? So I'm picking up my bags at Heathrow from the conveyor belt, and I called Mr. Tata. I said, what's happened?
He says Tango and Tito, his dogs, Yes. one of them had fallen terribly ill. Yes. He's saying, I can't leave him and come. So I told him- sensitive. I said, Mr. Tata, Prince Charles has organized this Lifetime Achievement Award. Yes. He didn't come. He didn't know. And you know what Prince Charles said? Yes. He says, that's a man. That's the man that Ratan is. That's why the house is what it is. That's why the house of Tata is what it is. That's why it is on stable course. So, what is important in life? What is being said and remembered of me afterwards is not just I've done so much business. मुझे इतना बड़ा रैंक मिल गया, प्रमोशन मिल गई, लेकिन मैंने कितनी केयर की और क्या वो अवार्ड नहीं मिला बाद में? बहुत अच्छे से, but with profound respect, the honor was given, and the person remembered him not just as an achievement, but deep honor for that person. तो मुझे केवल पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्रेज चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, और I want hearts of the people. This is what is called connecting with heart, connecting for soul, connecting the soul. तो soul के साथ संबंध जब हम करते हैं तो वो caring. So I place many other things in secondary. और उसका कुछ हो गया उस सोल का, जहां मेरे को कुछ फायदा नहीं होने वाला है उससे, मुझे कुछ भी फायदा नहीं, बट आई स्टिल केयर फॉर दैट पर्सन, इज कॉल्ड सोल टू सोल. ऐसे जब एटीट्यूड होता है, व्हेन इट कुड बी डन फॉर पर्संस जो मेरा कोई नॉन मॉनिटरी कोई बेनिफिट नहीं, क्या वो हमारा एग्जाम्पल दूसरा ले सकता है कि इस पर मैं फेथ कर सकता हूं? बिकॉज इफ ही कैन डू फॉर दिस पर्सन, ही कैन डू फॉर एनीवन. जिसको फायदा हो रहा है तो उसको तो क्यों नहीं करेगा? तो बल्कि दिस ग्रेटनेस इज जहां हमको सुकून मिलेगा. वाई टुडे वी आर एक्सेलिंग इन लाइफ इन मेनी वेज, लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन होता है, एक अंदर जाके एक वैकेंसी लगती है, बिकॉज आई एम नॉट वन द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन. जितना सोल्स की फीलिंग्स मेरे दिल में, मेरे लिए फीलिंग्स बहुत अच्छी फील होगा, ये तो रियली बहुत जेम है, इज रियली आई जस्ट हैव गुड विशेस फॉर यू, नॉट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, कि बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप माँ है बेटा है, नॉट बिकॉज ऑफ द फ्रेंड कि मैं बहुत बेस्ट फ्रेंड है इसलिए, नॉट बिकॉज आई हैव बेनिफिटेड फॉर बिकॉज ऑफ यू सो आई वॉन्ट यू टू बी इन दिस पोजिशन, लेकिन मेरा दिल कहता है नहीं, ही इज वर्थ, ही इज वर्दी फॉर दैट. ये जो दिल की फीलिंग्स दूसरों की आएगी ना, जो बिल्कुल कोई पोजीशन में नहीं है, और ऐसे बहुतों के दिल में आएगी, तो आप देखेंगे आपका जिसके पास दुआ है, जिसके पास धन है, जरूरी नहीं उसको दुआ मिलेगी. जिसके पास पोजीशन है, जरूरी नहीं उसके पास दुआओं का स्टॉक होगा, लेकिन जिसके पास दुआएं हैं उसके पास पोजीशन न हो, धन न हो, ये हो नहीं सकता. यू आर ऑलवेज फुल बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन द हार्ट्स. पीपल आर नॉट स्पीकिंग टू यू, मे बी कोई आपसे उसके कारण नाराज भी है, दो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, लेकिन फिर भी आपने किया. This is the fullness you will feel. Forget about what people will praise about you afterwards. And then certainly जहाँ fullness होगी वहाँ आपको cooperation न मिले, ये हो नहीं सकता. So therefore the third comes cooperation. जहाँ caring होगा वहाँ cooperation होगा. I am able to cooperate for any person in the life.
this power, energy, I have to get. And therefore, we say, ना आजकल सब जगह ये हो गया, बिजनेस हो गया, वो कोऑपरेटिव एनर्जी नहीं है. So what you have been remembered for is for that cooperative energy. Let's watch one more video of this. Cooperations किसे कहते? किए कि भाई उनको कुछ काम है, तो मैं उनके सेक्रेटरी से पूछ लिया क्या कहाँ काम है, तो बोले नहीं 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 वो बताएंगे बाद में. तो मुझे एक चिट्ठी भेजी रतन कि टाटा हमारे नौकर की about रतन लड़की टाटा. को It आपके is about कॉलेज में एडमिशन दिलाना है. और उनको पता था कि वो डायरेक्टली मुझे पूछेंगे तो मैं ना नहीं बोल सकता उनको, तो वो हिचकिचाए कि शायद मैं एडमिशन नहीं दे सकूं, तो डायरेक्टली आंख से आंख मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, मुझे आंख गिराने की ज़रूरत नहीं पड़े उनके सामने. तो उन्होंने चिट्ठी में मुझे रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरे नौकर के बच्ची को आप एडमिशन आपके कॉलेज में दिला दे. उनकी महानता देखिए कि वो तो सीधा पूछ सकते थे एक सेकंड में, या उनके सेक्रेटरी के द्वारा ही पूछ सकते थे और उनका काम हो जाता था, लेकिन नहीं, उन्होंने चिट्ठी एक छोटी लिख दी और उनको वैसे लिखा कि आप कर सकें तो आप कोशिश करके इनको एडमिशन दे दी. तो देखिए ना कि इतने बड़े होते हुए ऐसे कभी उनको ये नहीं था, दोस्ती भी थी, सब कुछ था, पोजीशन भी है, पावर भी है, पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन वो दूसरों को इतना सोच के काम करते थे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो निरंजन हीरानंदानी थे जो बता रहे थे रतन टाटा के किस्से, और जिन लोगों से भी रतन टाटा संपर्क में आए उनके पास किस्सों का अंबार है, किस्सों का भंडार है. So this was Hiranandani, a very, very popular builder of Bombay. He was talking about his experiences with Ratan Tata. तो अपनी कॉपरेशन की एटीट्यूड, और वो भी किसके लिए? नौकर के बच्चे के लिए. मतलब गोइंग टू दैट एक्सटेंट, क्या फर्क पड़ता है? तो ये आज अगर वो खुद आते और फोन करते और ये एडमिशन देते तो आज ये नाम नहीं होता. ग्रेटनेस इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड एंड दैट इज इमॉर्टल. सोल टू सोल कनेक्शन, मतलब ये ग्रेटनेस. आई माइट हैव नो कमर्शियल बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, but I'll still do it. That's called soul to soul. So when it is not soul to soul, काम पड़ा तो बहुत फोन किया और मुझे पता है इससे बहुत काम होना है, तो बहुत ज्यादा उसके आगे पीछे चल रहे हैं. उसको दिवाली गिफ्ट भी देंगे, उसको जो जो अच्छे लगते उनको भी गिफ्ट दिया जाएगा. क्यों क्यों इतने सारे गिफ्ट दे रहे? क्योंकि पता है मेरे को इससे काम लेना. So business model in relationships. Never have a business model in relationship. Jahan, let's keep business in business. Family, relationships, friends, and even any relationship. It could be even an employee-employer relationship. If my relationship बहुत अच्छा है, personal है, तो suppose like आई एम चेयरमैन्स भतीजा, बहुत अच्छा मेरा नजदीक का संबंध होगा, तो ऑटोमेटिक, या मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है पहले से, बिफोर इवन ही बिकेम द चेयरमैन या बिफोर ही बिकेम द जीएम, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम. तो ऑटोमेटिक जब वो स्टेटस में आएगा तो आपको मिलेगा ही ना. तो जहां पर्सनली हम अच्छे होंगे तो हमको वैसे भी फायदा होना, बिकॉज इट्स वी आर पर्सनली कनेक्टेड टू दैट पर्सन. तो नेवर हैव बिजनेस इन रिलेशनशिप. नेवर क्वांटिफाई व्हाट आई हैव डन इन द रिलेशनशिप. कई बार हम संबंधों में भी
बहुत बार वी कैलकुलेट, हम बोलते हैं क्योंकि बिजनेस है ना, इसने इतना किया मुझे भी इतना करना है. In business, go to the minutest details, but only when it comes to figures. But if there is a human being, if I have an heart-to-heart relationship, connection with that soul, 100%, whatever may be my position, I will certainly benefit from that connection. कभी भी उसको पावर मिलेगी तो मुझे उस तब तो फायदा होगा, और अदरवाइज भी अगर उसकी दुआएं मेरे साथ है तो ऑटोमेटिक मैं राइज करूंगी, मुझे तो फिर किसकी जरूरत ही नहीं है. हमको ये सब लॉबिंग करने की जो आदत जो करना पड़ रहा है, मस्का पॉलिश करना पड़ता है, ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास वो स्टॉक नहीं है ना, तो फिर यही स्टॉक है, यही करता, और कोई स्टॉक नहीं. सो नेवर have business in relationships. What are the different businesses we do in the relationship? Because relationship है, लेकिन उसमें भी कितना हम ले हाँ, तो लेट्स सी कितना हम going beyond, do I go beyond it? Now let's identify an attitude. I did this much for you. You should do. How much did you do for me? मैंने कितना किया आपके लिए? हम कभी कभी बच्चों के लिए कह देते थे, अपने पार्टनर के लिए भी कह देते. Now we all have to write A and B. Is it a business? Is it love? मैंने कितना किया, आपने क्या किया? सभी फास्ट लिखे. ए है, बी है. इज इट बिजनेस? इज इट लव? वी से वी लव यू सो मच. मैं कितना प्यार करती हूँ, आई एम वेरी मच अटैच्ड. फास्ट लिखते जाए. बिजनेस है, लव है. यस, वी वांट ऑल द आंसर्स. सबकी सहमति से टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड, बिकॉज टुडे thereafter there will be the question answer session next time. Yeah, 10 सहमति चाहिए. Is it business? Is it love? Fast. Okay. Next question. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. Last time I went with you. And last time I listened to you. Now this time you have to go with me. क्योंकि मैंने इतना सुना ना लास्ट टाइम, अभी आप भी सुनो मेरा. इज इट बिजनेस? इज इट लव? क्या कहें? इज इट बिजनेस? इज इट लव? मैंने कितना किया, और मैं हमेशा करती रही हूं, हमेशा मैं आपकी सुनती रही हूं. वेरी गुड. अच्छा, हाँ, अच्छा, देर इज वन आंसर बी ऑल्सो. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड लव. ओके. अच्छा, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन. I love you so much. How much do you love me? किसके साथ भी हो सकता है. मैं तो कितना, मुझे प्यार, मेरा कितना कंसर्न है, आपको कितना है. और फिर अगर कभी मुझे उतना ना मिले, मेरा डिजेक्शन हो जाता है. इज इट बिजनेस? इज इट लव? इज इट रिलेशनशिप? अच्छा, it's love also, somewhere someone said. Wonderful. Majority said it is business. तो मतलब आज हमारा क्या है? Relationship is business. Can we say this? Do we ever have this kind of complaints? मैं इतना करती हूँ, क्या किया? क्यों हमको गुस्सा आता है? And sometimes the ladies or even
एनीवन, वो सब गुस्सा कहाँ निकालते? मैं कितना करती हूँ, तुम क्या करते हो? वो बर्तनों पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है, होता है। सो बिकॉज आई जस्ट एक्सपेक्ट, फिर हम कहते हैं अनकंडीशनल, नथिंग इज अनकंडीशनल। एक्चुअली जहां लव है ही नहीं, वो है ही एक्सपेक्टेशन, वो है ही कैलकुलेशन। सो देयरफॉर we are now, are we in the relationship because I love that person? You have to answer this question. Are we in the relationship because I love, you love the person, or because you want love from the person? तो आंसर देना. Are we in the relationship because we want love from the person, or because you love the person, or you want love from the person? A, you love the person, and second is you want love from the person. दिल से आंसर देना. एक है हमारे हमारे बैग्स भरपूर है, हम देने के लिए आए. एक है मैं कटोरा खाली करके लेके आई हूँ, पार्टनर के सामने, बच्चों के सामने. Okay. So everyone said we love the person. Just full stop. Nothing beyond that. I am in the relationship not because I want love. तो इसका मतलब जाते जाते मेरे तरफ देखा भी नहीं, नाराज होंगे? मैंने इतना फोन किया, उन्होंने वापस जवाब तक नहीं दिया, ब्लू टिक मार्क भी नहीं आया, नाराज होंगे? I just want to give. This is called relationship. And when I go on giving, if I give, I go on giving always. This is love. Love is not unconditional. जो कंडीशन वाला है वो लव है ही नहीं. So love need not be given a title unconditional. Love means I have the pure intention. Simple understanding है. सभी ध्यान से सुनो. I have the pure intention to raise my vibration, to radiate purest of energy for you. I just want to radiate the purest energy I have for you. Finish. This is called love. I raise my vibration. जो कटोरा खाली करके हम बैठे होते हैं, it is not at all love. और इस कारण it is a business, and therefore जहां रिलेशनशिप में बिजनेस आ गया, आज हमारा स्ट्रेस भी उतना ही है. The major reason of stress in life is relationship. क्यों? क्योंकि बिजनेस मॉडल होता है. मैंने इतना किया, मेरे घर वालों ने इतना किया, मेरे पापा ने इतना किया, etc. etc. Everywhere it has become a business, and therefore we are not comfortable. बहुत ज्यादा हार्ट का प्रॉब्लम्स, we have a cardiologist coming to us. वो कहते हैं majority of the heart issues are related because of the family stress. Business stress बहुत कम आया है, family stress the major reason. Because जो aspect में कभी भी ये कहीं ना दूर दूर तक ये बातें नहीं होती थी, वो बहुत कॉमन हो गई. And we are just there in that relationship because I want it. I want it. So this model, this is called heart-to-heart communication. So when there is a heart-to-heart, automatic, if I just go on giving, actually, क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत, first I am able to understand कि बेचारा बहुत पेन में है, क्रोध में है, उसके अपना घड़ा पूरा खाली है, उससे मैं क्या लूं? वो पूरे दिन ऑफिस से क्रोध करके आया है, इधर चिल्लाना, इधर गुस्सा करना,
उधर रिसीव किया, इरिटेशन रिसीव किया एम्प्लॉयर से या सब जगह से वो क्रोध इकट्ठा करके आया है. एंड द वाइफ ऑल्सो इज देयर इन द हाउस. शी इज ऑल्सो कम. बोथ ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स कमिंग इन द हाउस. ये पूरा खाली करके आया है. पूरा क्या भर के आया है? उसका प्यार का पूरा घड़ा खाली हो गया, पूरा क्रोध भर के आया है. एंड फ्रॉम देन इन द इवनिंग व्हेन यू कम बैक, हम कहते हैं प्यार से बात क्यों नहीं करते? यू डू फॉर मी. आप ये इतना भी अच्छे से नहीं समझ सकते? यू कांट अंडरस्टैंड. आई एम सो मच स्ट्रेस्ड. कितना कुछ डिफिकल्टी से हम पूरे दिन गुजारा था. व्हाई आई वांट दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ पर्सन? बिकॉज आई एम एम्प्टी. एंड व्हाई आई एम एम्प्टी? Because I'm not raised my vibration, which I have with that intention to give you. And since I don't recognize my vibration, I'm not used it, what I do? I just want. I don't know even if I have or not. जो डब्बिया ऑफिस में जो पेपर्स आप ज्यादा काम करते हैं ना, ऊपर रहता है. जो पेपर्स बहुत कम यूज करते हैं वो नीचे होता है. और कभी कभी हम ढूंढते रहते हैं, वो मिलता ही नहीं है, पड़ा है वो नीचे. So I don't know. I soul. I'm pure. I'm loving. I'm full of that love. And because I don't know, I just don't feel. And therefore, but I want it. मैं क्या करूंगी? बैठूंगी, वेट करूंगी. ये फ्रेंड आए, मुझे फोन करे, मुझे अच्छा लगेगा. ये पार्टनर आए, मुझे फोन करे, मुझे अच्छा लगेगा. इतना सा दो शब्द तो बोल दे. आई लाइक यू, यू आर वेरी गुड. इतना सा ही बोल दे बस. आई एम जस्ट कंप्लीटली बेगर कि मुझे 10 रुपए भी मिल जाएगा ना, बहुत हो जाएगा. बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव सो मच. सो व्हाट इज spirituality? Connecting, first of all, feeling that I am a pure energy. I am soul. And I'm full of this energy. I just have to use it, radiate it. मुझे सिर्फ देना है. तुमने प्यार से बात नहीं की, मुझे करना ही है. ये सोल बेचारी बहुत इंजर्ड है. सो व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट इंजरी, एंड एक्चुअली व्हेन आई एम इरिटेटेड, व्हेन आई एम एंग्री, आर वी नॉट हर्ट समवेयर? कहीं ना कहीं हम हर्ट थे ना. किसी ने मुझे गुस्सा किया तो वो हर्ट था, इसके कारण मुझे आपको गुस्से करना पड़ रहा है ना. तो एक्चुअली मैं हर्ट हूं. तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, फीलिंग्स टू फीलिंग कनेक्शन, मतलब मैं उसके हर्ट को समझूं. बस उसकी कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स को समझूं कि ये बहुत दर्दनाक है, मुझे और अच्छे को देना है. उसने मेरा बात नहीं मानी, वो फिर भी अपना पूरा अथॉरिटी कर रहा है. बेचारे के पास कुछ भी प्यार नहीं. मुझे उसको मर्सी देनी है. ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत प्योर सोल. आई जस्ट गो. उसने मेरा फोन भी नहीं पिकअप किया. मैंने 4 बार फोन किया. कोई बात नहीं, मुझे देना है, देना है, देना है, देना है. इज द क्रक्स ऑफ सक्सेस इन रिलेशनशिप. I just have to give. And when is this possible? So can I be successful in the relationship? If I have just this funda, मुझे देना है. And when can this be possible? When I just take from one. एक परमात्मा से हम लेते हैं. When आपको वो फील होगा, वो संबंध एक ऐसा पावरफुल संबंध है, उससे सब कुछ मिलता है. और जब सब कुछ मिलेगा ना, इधर भरपूर रहेगा. यू आर जस्ट मेंट, और यू वुड जस्ट लाइक टू गिव इट. कोई भी आए, बहुत अच्छे प्यार से बात करेंगे. किसी भी समय आ जाए, आपका प्यार कम नहीं होगा. आपकी कोऑपरेशन वैसी ही रहेगी. ये काइंडनेस, कोऑपरेशन, caring, concern is the sign of fullness in the heart. Let us be full with this and then give the good wishes in this Diwali. Happy Diwali. ये good wishes है. और वो जो आप नहीं भी लिखोगे ना, कुछ भी आप खुश होके जो बोलोगे, वो रियली उसको हैप्पी कर देगी.
कोई जरूरत ही नहीं कार्ड्स की, कोई जरूरत ही नहीं इतने बड़े गिफ्ट की। ये चाहिए, क्योंकि गिफ्ट तो खरीदा जा सकता है, ये नहीं कोई खरीद सकता है। So let us celebrate this Diwali with this fullness in the heart by becoming full with this powerful energy. So we'll try this fullness today. Let's take the whole lot of love, peace, happiness from the Supreme Energy. And then full ourselves. और फिर अब बाद में आप ऑफिस में काम करो तो अपने आप को सब बातों से एकदम फुल करें। I am the pure energy. So I first understand myself as the pure energy. I am a soul full of peace, love, happiness. And is the supreme energy, Paramatma. A very powerful energy, and my nearest relationship, Paramatma, Allah, Ishwar, पर actually मेरा father है. So I just go on taking love, peace, happiness. उनसे मुझे मिलता जा रहा है in the form of rays. उससे completely मुझे प्यार की किरणें आ रही हैं। शांति की किरणें आ रही हैं। वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है। उसके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है। मैं कंटिन्यूसली उससे लेती जा रही हूँ। बस मुझे एक से ही लेना है। पूरे लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में मुझे केवल आपसे लेना है। बाकी सबको मुझे देना ही देना है। चाहे कोई छोटा है, चाहे बड़ा है। उससे लेकर, so we are visualizing the supreme soul से किरणें आ रही हैं लव की, हैप्पीनेस की, शांति की रेज आ रही है। मैं फुल हो गई हूँ। And now I come back into this body. और अब मैं विजुअलाइज कर रही हूँ ऑफिस में कलीग्स हैं मेरे सामने, मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। मुझे उनको शांति देनी है। मेरे शांति से बात करना ही उनकी शांति।
रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, देना। दिस इज व्हाट आई डू थ्रूआउट। ओम शांति। So, this is a small thing, but I'm sure it's very important in our life. तो ये होमवर्क रहेगा हमारा, क्या करना है कि changing my attitude. She is a pure energy. I do everything because for anyone, because I like doing it. मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। हो सकता है this Diwali, can I give this kind of good wishes to everybody? तो मुझे कुछ मायना नहीं रखेगा गिफ्ट छोटा आया बड़ा आया, दिया नहीं दिया, मैंने इतना दिया उसने कुछ दिया या नहीं दिया, I don't mind. I just have to give it. Okay, so thanks a lot, and all of us will do this homework. देना है, देना। Om Shanti. Thank you, Didi, and thank you to everybody else for attending the session. Let us meet the next week. Thank you. Have a nice day and Om Shanti.